Hi students and welcome to your second session of Resources and Development. This is your social science expert at Vedantu, Shubham Pathak. And before we start the session, let me congratulate the children who had answered the questions from the previous video. So congratulations, my creations. You know you really need to write your name so that we can congratulate you. Also Harman Kaur, big round of applause for you. Also again my creations. Okay, I see. That's great. Okay. And now we'll be moving on and I'll be giving you two quiz questions from the previous session so that you can put the answer in the comments and be on the slide next time. ठीक है, तो दो questions discuss करते हैं. पहला question है, the resources which are obtained from the biosphere have life are known as what? Okay, on the basis of origin. That is your hint. And the right answer is biotic. One more question for you. The ocean resources beyond 200 nautical miles is classified under which zone? मैंने बताया था आपको पिछले सेशन में कि इसे बोलते हैं exclusive economic zone, right? चलिए अब आगे चले उससे पहले I have a very great announcement to make that we are starting Revise India at Vedantu for 72 hours straight. You'd be revising the entire class 10 syllabus, right? Isn't that amazing? Yes, 300 plus topics and unlimited doubt solving with the amazing faculty of Vedantu. And don't you think कि यार Vedantu का part नहीं थे पहले तो अब Revise India का part नहीं हो सकते हैं because मेरे पास बहुत queries आ रही हैं. Even if you weren't a part of Vedantu before, you can be a part of this Revise India campaign going on, okay? Do think about it and you will be able to study from this amazing faculty. Okay, so see you there. चलिए अभी आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आएगा इस सेशन में, आपको क्या क्या मिलेगा. ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको. Let's start without wasting any time from the land resources. Okay, let's look at the questions that had come upon it. This question had come in 2011. The question asks you, what are the main advantages of India's land under a variety of relief feature? क्या advantage है इंडिया के लैंड का, ठीक है. So let's look at it. As you know, land एक बहुत बड़ा बहुत important natural resource होता है. Vegetation, habitat of the animals, construction, any sort of irrigation, farming, all of that depends upon the land. Look here, natural vegetation, wildlife, human life, transport, community, etc. Like you can imagine n number of things dependent upon land, right? That makes it a very valuable natural resources. It is also used for various purposes of proper planning. No matter what we are planning in the nation's development, we think about land first, right? And India is blessed with having a lot of relief features. हमारे पास अलग अलग तरीके का लैंड है, अलग अलग तरीके का रिलीफ फीचर है. जैसा कि आप जानते हो 43% जो लैंड है हमारे पास वो प्लेन एरिया है, राइट? वो प्लेन है, वो समतल एरिया है एंड ये हमारी स्ट्रेंथ है. इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. सिंस वो प्लेन है वहां पे हम एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ओके, 30% जो है वो माउंटेन्स हैं और ये माउंटेन्स जो है एक इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर है. हिमालयन माउंटेन कंट्री का इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर है. इसके अलावा ये माउंटेन्स इतना टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं. टूरिस्ट फ्रॉम नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब कम टू सी आर माउंटेन्स, राइट? Then 27% of the country's area is plateau region. And what is the importance of plateau region? You people all have already studied in minerals and energy resources कि plateau में peninsular India में हमें सबसे ज़्यादा बल्कि सारे minerals ही हमें peninsular India में मिल रहे होते हैं, right? तो ये है इन तीन areas की, तीन relief features की proportion, also importance. अभी आगे चले उससे पहले you have to do this quiz question for me. The quiz question is, what percentage of land in India consists of fertile plain? Fertile plain का क्या percentage था? So children, I would like to apologize for my throat. I hope you can understand what I'm speaking. And the answer to this question is 43%. Okay. Let's move ahead and discuss land utilization. अब ये तो हो गया कि कितना लैंड हमारे पास है, इसे हम यूटिलाइज कैसे कैसे करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं. So a question was asked in 2013 for 3 marks. The question was define the following terms. 3 आपको terms दे दिए थे और उन्हें आपको डिफाइन करना था 3 मार्क्स के लिए. तो 1 मार्क ईच सिर्फ डेफिनेशन आई थी. करंट फैलो लैंड क्या होता है, अदर देन करंट फैलो लैंड क्या होता है और कल्टरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है. बहुत कंफ्यूजन रहती है चिल्ड्रन आप लोगों को, मुझे पता है. तो वी विल बी डिस्कसिंग इट वन बाय वन नाउ. So look here, land resources are used for the following purposes. अगर डिफाइन करना हो कि किस किस तरीके से लैंड को यूज करते हैं तो आपको बस ये लिखना है. एक तो है फॉरेस्ट, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, उसके अंदर बैरल लैंड भी आता है, वेस्ट लैंड भी आता है और लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज करते हैं वो भी आता है. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऑल्सो वी हैव फैलो लैंड
एंड वी हैव नेट सोन एरिया। तो ये तो 5 कैटेगरीज हैं, धीरे धीरे बात करते हैं इसके बारे में। फॉरेस्ट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। जंगल की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट जंगल, राइट। Then land not available for cultivation. This is the kind of land, children, जो cultivation के लिए हमारे पास available नहीं है। क्यों? इसके 2 रीजन है। एक तो ये है कि ये वेस्ट लैंड है, और दूसरा रीजन ये है दैट इसे हमने किसी और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज कर रखा है, घर बनाने के लिए, सोसाइटी बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, लेट्स लुक एट द थर्ड कैटेगरी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अलावा जो बाकी तरीके के लैंड हैं जिन्हें हम कल्टीवेट नहीं करते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। द फर्स्ट वन इज परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसे लैंड जिसे हम छोड़ देते हैं परमानेंट पैस्चर की तरह, कि जो हमारा लाइफ स्टॉक है वो उसे ग्रेज करेगा, अपना फूड ऑब्टेन करेगा, वो भी इसमें आता है। सेकेंड पॉइंट इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स। अब ऐसा लैंड जो कल्टीवेटेड तो है बट वी हैवंट कल्टीवेटेड दैट, ओके, इट जस्ट हैज एनी मिसलेनियस कल्टीवेशन गोइंग ऑन, सो वो लैंड आ जाता है आपका मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स में, जो कुछ उग रहा है लेकिन नहीं पता क्या उग रहा है, हमने नहीं उगाया है, ठीक है। देन कल्टरेबल वेस्ट लैंड, ये एक ऐसा लैंड होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, देयर इज योर डेफिनेशन। ये एक ऐसा लैंड होता है जिसे आप अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हो मोर देन 5 ईयर्स के लिए। मतलब इससे पहले क्या पता आप इस पे एग्रीकल्चर करते थे, नहीं करते थे, बट आपने 5 सालों तक या 5 सालों से ज्यादा तक इस पे एग्रीकल्चर नहीं किया है, सो इट काउंट्स एज कल्टरेबल वेस्ट लैंड। मतलब कल्टीवेट हो सकता है लेकिन हमने उसे वेस्ट लैंड बना रखा है, ठीक है। अभी चलते हैं फैलो लैंड की तरफ, जो 4th कैटेगरी है हमारी। फैलो लैंड में भी 2 तरीके के आते हैं, एक होता है करंट फैलो, एक होता है अदर देन करंट फैलो। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड इज द लैंड जिसे 1 साल के लिए जो है लेस देन 1 ईयर के लिए हमने कल्टीवेट नहीं किया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अदर देन करंट फैलो इज जिसे बिटवीन 1 to 5 ईयर्स के लिए हमने कल्टीवेट नहीं किया है, ठीक है। सो ये हो गया फैलो लैंड। देन नेट सोन एरिया, 1 साल में एक कंट्री में कितने एरिया पे क्रॉप उगी है, ओके। लेट मी टेल यू दैट इन इंग्लिश ऑल्सो। सो इन 1 year the total amount of area which is sown in a country is known as net sown area of that country. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी बोल सकते हो इसे, प्लस नेट सोन एरिया, ओके। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में इस लैंड को यूज करने का क्या पैटर्न है। एंड लुक एट दिस क्वेश्चन दैट हैड कम इन 2012। द क्वेश्चन आस्क्स यू 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अ कंट्री इज शुड बी अंडर फॉरेस्ट। ये आपको स्टेटमेंट खुद ही कह रहा है कि 33% जो है एरिया हमारा फॉरेस्ट होना चाहिए। जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को, हाईलाइट द एनवायरमेंटल वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट, और इसके साथ ये भी बता दो कि फॉरेस्ट की क्या एनवायरमेंटल वैल्यू है। बड़ा हटके क्वेश्चन था, 2012 में आया था, 3 मार्क्स के लिए, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितना होना चाहिए उसे हमारी कंट्री में, कितना परसेंट और कितने परसेंट वो है। सो लुक एट दिस, यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। यस, लैंड को डिटरमाइन करने के लिए भी 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है ह्यूमन। फिजिकल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द whatever you can see, for example topography, you can see climate, you can see soil type, all of that would consider the फिजिकल फैक्टर। देन ह्यूमन फैक्टर, अगेन ह्यूमंस ऐसा क्या करते हैं जिन पे लैंड का यूज डिटरमाइन कर सके, हम कितना उसे यूज कर रहे हैं, हमारी क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, ये सब आ गए आपका ह्यूमन फैक्टर में। देन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है। टोटल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। फ्रॉम दैट एरिया अगर माने साइंटिस्ट की बात तो 33% होना चाहिए उसमें से फॉरेस्ट, 33% शुड बी फॉरेस्ट, राइट। ऑल्सो इन इंडिया लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%। जो हमारे पास सारा डेटा है वो है ही 93% का। बाकी जो 7% है वो थोड़ा डिबेटेबल काइंड ऑफ लैंड है, या तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है या तो वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है, जिसे अभी हमने सर्वे नहीं किया। बेसिकली डिस्प्यूटेबल लैंड, ओके। Let's go ahead and talk about how have we done the pattern of land use in India.
ये जो चार्ट दे रखा है, दो पाई चार्ट्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है अगर लैंड यूज पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में एक्सप्लेन भी है थोड़ा सा। दे हैव टोल्ड यू दैट pasture land has also been decreasing in India. The land under permanent pasture has also decreased, but we are able to feed our huge cattle population on this land. लेकिन अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट है, अभी भी हमारे कैटल के पास खाना है। ऑल्सो जो फैलो लैंड है, मोस्ट ऑफ द फैलो लैंड जो अवेलेबल है हमारे पास, वो इतना खराब क्वालिटी का है, इट इज सच पुअर क्वालिटी लैंड, या कि उस पे अगर हमें कल्टीवेशन करना है तो उसका कॉस्ट बहुत हाई आएगा, या फिर उस पे कल्टीवेशन करना इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ द फैलो लैंड इज रियली रियली लो। देन These are cultivated in once or twice in about 2 to 3 years. इसी वजह से ये जो फैलो लैंड है, इसे हम 2-3 सालों में एक बार कल्टीवेट करते हैं, इससे ऊपर इससे हो भी नहीं पाएगा। ओके, अभी चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं थोड़ा और इस पैटर्न पे। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया आपने जो देखा, हमने सबसे ज्यादा जो शो किया था पाई चार्ट में, दैट पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ऑब्वियसली इट्स नॉट यूनिफॉर्म, राइट? सम ऑफ द स्टेट्स हैव फार्मिंग ऑन अ लार्जर स्केल, सम ऑफ द स्टेट्स हैव फार्मिंग ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। तो लेट्स से उत्तर प्रदेश का नेट सोन एरिया जो है वो ऑब्वियसली आपका लेट्स से कौन सी स्टेट से कंपेयर करें, राजस्थान से कंपेयर कर लेते हैं, उससे कम होगा, राइट? सो ऐसे एरिया जो है नेट सोन एरिया वो ग्रेटली डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। ऑल्सो 80% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द नेट सोन एरिया इज इन जस्ट पंजाब एंड हरियाणा। सो इमेजिन, देन 10% इज इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार, और 10% ये सारी स्टेट्स मिलके बनाती हैं। तो काफी वेरिएशन है। ओके, फॉरेस्ट एरिया जो हम तब से बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया कवर्ड शुड बी 33%। कौन कह रहा है ये कह रहा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में आई थी कि इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड को देखते हुए, वी शुड एटलीस्ट हैव 33% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। बट इंपॉर्टेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, बाय डू वी कॉल कि इतना होना चाहिए? क्योंकि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वी हैव सच अ रिच फ्लोरा एंड फौना। हाउ वुड वी मेक श्योर दे आर फ्लरिशिंग? हाउ वुड वी मेक श्योर दैट देयर इज इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ इंडिया? थ्रू फॉरेस्ट। ऑल्सो हमें पता है फॉरेस्ट से सॉइल इरोजन नहीं होता है, फॉरेस्ट से पोल्यूशन कम होता है, ऑक्सीजन जनरेट होता है। यू मस्ट हैव स्टडीड दीज पॉइंट्स इन योर स्मॉलर क्लासेस एंड दे आर वेरी वैलिड पॉइंट इफ अ क्वेश्चन कम्स। ओके, then livelihood of millions of people depend on it. Obviously not everybody has access to markets for everything, right? There are a large number of people who are still dependent upon the forest areas for their day-to-day items, right? For example, vegetables, fruits, timber, all of that. इसके अलावा इस टॉपिक में एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है जो 1 मार्क के लिए आ सकती है, दैट इज ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड क्या होता है? नाम से ही लग रहा है आपको फालतू का लैंड, राइट? सो दिस लैंड इंक्लूड्स ऑल द रॉकी, ऑल द एरिड, ऑल द सेमी एरिड, डिजर्टेड एरियाज जहां पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो हम उसे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्री, सेटलमेंट, ऑल ऑफ दैट। ओके, now before I move on and go to another topic, let me give you a quiz question. Your quiz question is, area sown more than once in a agriculture year plus net sown area is known as what? बताया था, एक और वो था, the question, the answer is gross cropped area. Okay, let's move ahead and talk about land degradation and conservation measures. So a question had come in 2012 for 3 marks. Look at the question. The question asks you, which is the main cause of land gradation in the states such as Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh? By the way, 3 mark का video is out for geography also. So if you'll go through it, ये question वहाँ पे भी है. Cool. वहाँ पे आपको इसका पूरा आंसर भी मिलेगा. How can it be checked? So children, with the overgrowing population, with the overgrowing development agendas, the country has been struggling with land degradation. Okay, the land that we have not been treating it right. Instead, we have been exploiting it. Some of the reasons you already know, some of the reasons are mentioned here. But before that, let me tell you, इतना important है land कि 95% जो हमारी basic requirement है, be it for the clothing, be it for the food, be it for the shelter, that comes from the land. Yet we haven't been thinking about it. So what are those broad spectrum points जो है land degradation के? Some of them are here. Deforestation. इतने पेड़ काटते हैं, deforestation से land degradation भी होता है, soil erosion भी होता है, सब कुछ होता है. Then overgrazing, छोड़ देते हैं हम अपना लाइफ स्टॉक ग्रेज करने के लिए. वी डोंट रियलाइज दैट ग्रेडिंग हैज टू बी इन एन एडिक्वेट मैनर, इन एन एडिक्वेट क्वांटिटी, सो दैट द ग्रास इज नॉट uprooted
and can grow back really well. Okay, तो uproot जब हो जाती है तो हम उसे overgrazing की situation कहते हैं. Then we have mining activity. Obviously mining and quarrying are some of the worst form of land degradation. इतना slurry produce होता है, इतना waste produce होता है that we dump on the land and the land becomes also toxic. Then some of the points you already know, for example, dumping of the land, dumping of the household waste or dumping of the plastic or any non-biodegradable item into the land actually makes it a wasteland. You can't cultivate it. And you must have read, again, the points you must have read in your smaller classes, they are all valid. Don't you think यहाँ नहीं लिखे तो हम नहीं लिख सकते? Cool. Now let's get ahead and discuss कि different states में ये different तरीके से prominently land degradation होता है. For example, the states such as झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश and उड़ीसा, यहाँ पे mining की वजह से land degradation सबसे ज़्यादा होता है. On the other hand, in the states like गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश and Maharashtra, I already told you in that question कि यहाँ पे main reason is overgrazing. Now let's come to the fertile states like UP, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. I mean यहाँ पे over irrigation हो जाता है. हम इतना ज़्यादा irrigate कर देते हैं अपनी farming में कि उससे भी land degrade हो जाता है. So these are some of the valid points that you can write. And talking of conservating methods, ये सारे जो अलग अलग स्टेट्स का मैंने आपको बताया उनके लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे. ठीक है, लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन. द फर्स्ट पॉइंट इज एफॉरेस्टेशन. ऑब्वियसली मतलब दिस इज द बेसिक थिंग. पेड़ उगा लो तो लैंड थोड़ा बच जाएगा, सॉइल भी बच जाएगी, ऑल्सो पोल्यूशन कम हो जाएगा, एनवायरमेंट ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. ऑल्सो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग. यू कैन ब्रेक दिस पॉइंट इनटू 2 पॉइंट्स. मैनेजमेंट, ग्रेजिंग करने में कोई बुराई नहीं है. द प्लांट विल ग्रो बैक, द ग्रास विल ग्रो बैक, बट in a manner that you are not uprooting the grass, right? Second point is planting of the shelter belt. What do you mean by shelter belt? Shelter belts are the belt that you actually grow surrounding your crop area. आपने जहाँ पे क्रॉप उगाया है उसके अराउंड अगर आप बड़े बड़े पेड़ उगा दोगे तो आप उसे शेल्टर बेल्ट बोलोगे. क्यों करोगे? आपकी क्रॉप भी प्रोटेक्टेड रहेगी और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, तो इसके भी काफी फायदे हैं. ठीक है. देन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स. हमें पता है कि राजस्थान में एंड कुछ थार डेजर्ट के पार्ट्स में सैंड ड्यून से बहुत लैंड डिग्रेडेट होता है एंड इवन वहां पे रहने वाले लोगों को भी काफी प्रॉब्लम होती है. इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, हमें पता है कि राजस्थान में यू कांट ग्रो ऑल द बिग ट्रीज, बट यू कैन ग्रो shrubs and you can grow xerophytic plants, and that's exactly what you should be doing to stabilize the sand dunes. ठीक है, ताकि थोड़ी मिट्टी जो है बंद ही रहे. Then let's look here, proper management of the wasteland. Yes, we know that wasteland is there in India, but अगर उसका proper management करें तो maybe that can also become a cultivable land. Who knows, right? Then control of mining activities. Yes, there has to be. Mining is nationalized in India. There are so many laws, but they're never followed properly. So if we could think of better laws or better implementation for the mining laws, we will be able to conserve our lands, because वो सारी टॉक्सिक स्लरी जाती है लैंड पे डंप होने और लैंड को डिग्रेड करती है. देन प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड वेस्ट. हाँ, इंडस्ट्रीज भी कोई पीछे नहीं है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. हमारा सेकेंडरी सेक्टर फ्लरिश करता ही जा रहा है और वो सारा अपना जो डिस्चार्ज है या तो नदियों में भेजती है और वाटर पोल्यूशन होता है, या फिर वो लैंड पे होता है जहाँ पे सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन होता है. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मेथड दैट you can write. Now let's discuss the second resource in a book, which is soil. Soil जो है is one of the most important renewable resource. अच्छा, एक फंडा बताती हूँ कि लैंड और सॉइल में डिफरेंस क्या होता है. लैंड तो पूरा हो गया जो आपको दिखता है, सॉइल होती है उसकी टॉप फर्टाइल लेयर. सो एक्चुअली सॉइल इज अ पार्ट ऑफ लैंड ओनली, बट द thin line between land and soil is that land could be fertile or not, और लेकिन जो soil है वो generally fertile layer ही होती है land की. ठीक है, अभी चलते हैं आगे. Yes, तो मैं बात कर रही थी कि renewable बहुत important resource है, लेकिन soil बनने में इतना टाइम लगता है कि हम तब तक तो इसे ओवर यूज एक्सप्लॉइट कर चुके होते हैं. बट इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. सॉइल इज नॉट ओनली अ हैबिटेट फॉर प्लांट ग्रोथ. मतलब कि सिर्फ या तो प्लांट ग्रोथ नहीं होती है इसमें, बट इसके अलावा और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, लाइक अर्थवर्म्स. राइट, वी ऑल सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल. सो इट्स अ हैबिटेट फॉर प्लेथोरा ऑफ फौना एंड
फ्लोरा। देन फोर्सेस ऑफ नेचर, कैसे बनती है सॉइल, राइट, फोर्सेस ऑफ नेचर से, वेदरिंग से, एंड टेम्परेचर, रनिंग वाटर, प्रेशर, विंड, ग्लेशियर, इन सब पे डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल मिलेगी, कैसी फॉर्मेशन होगी, कितना टाइम लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ लेट्स गेट अहेड एंड डिस्कस टू मोर फीचर्स अबाउट सॉइल। सो सॉइल में ना तो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं बट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, लाइक मिनरल्स, लाइक phosphorus. Okay, soils could be classified into different types depending on the factors of their formation, what is their color, what is their texture, what is their age. इस basis पे हम soil को कर सकते हैं differentiate. That is exactly your next part of the chapter, which is classification of soils. Look at this question that will come in 2015 for black soil की black soil के कोई भी 3 features लिख दो आप, 3 marks के लिए question आया था। अब ये जो question है ये किसी भी soil के लिए आ सकता है, इसीलिए हम आगे जो है सारी soils की features prepare करने वाले हैं, ठीक है। Let's start with the first soil classification. As you can see at the back we have all the classifications of the soil starting from your alluvial till the arid soil. सबको एक एक बार करके हम जरूर पढ़ेंगे। Let's start with the alluvial soil. Now as the name itself suggests ये सबसे fertile soil होता है, right? And India is actually very fortunate कि ये हमारे यहाँ widespread होता है। कैसे डिपॉजिट होता है, ये बनता कैसे? This is deposited by the rivers. जो रिवर्स माउंटेन से आ रही होती हैं वो अपने साथ जो है बहुत सारा डिपोजिशन लाती हैं और उसी से बनती है एलुवियल सॉइल। कौन सी रिवर्स की बात हो रही है? हिमालयन रिवर्स की बात हो रही है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, राइट। Also, they are highly fertile, like I told you, and they are very good for cultivation. जो ये plain area होते हैं, जो northern plains होते हैं, they are very blessed with the alluvial soil, right? That is your last point. इसीलिए northern plains highly populated है, soil अच्छी है, farming अच्छी है, agriculture अच्छा है, obviously people would want to stay there, isn't it? चलिए आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं एलुवियल सॉइल का। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, स्ट्रिप्स इन गुजरात, राजस्थान एंड इन द डेल्टाज ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तो मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात और राजस्थान में भी मिल जाती है ये सॉइल। सेकेंड पॉइंट इज इट इज मेड अप ऑफ सिल्ट्स। ऑब्वियसली नदियां जो है माउंटेन से ला रही हैं चीजें, तो थोड़ा सा सिल्ट होता है, सैंड होता है, क्ले भी होता है, ह्यूमस कंटेंट जो है इसमें काफी अच्छा होता है, वाटर कंटेंट, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। थर्ड पॉइंट, ये बहुत ज्यादा कल्टीवेशन के लिए, हमने बताया ना एग्रीकल्चर के लिए काफी काम आता है, पैडी से लेके, वीट से लेके एंड इवन शुगर केन, ये सारे सीरियल क्रॉप्स आप इसमें ग्रो कर सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ एज। अच्छा, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ज्योग्राफी में कि हिमालयास के बाद वाला जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो एज के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट, भंगर एंड खादर। सो जो भंगर होता है दैट इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड द खादर इज द न्यू एलुवियल सॉइल। भंगर इज लेस फर्टाइल देन खादर। यही 2 पॉइंट्स आपको बस रिमेंबर करने हैं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, दे आर कॉमन इन द प्लेन सच एज दुआर, कायोस एंड तेरई। ये जो फुटहिल्स होते हैं माउंटेन्स के, वहां पे ये सॉइल आपको मिलेगी। अगेन द सेम लॉजिक, रिवर्स आर ब्रिंगिंग द सिल्ट एंड द डिपोजिशन एंड दैट इज व्हाई दिस सॉइल इज फॉर्मिंग। तो कहां मिलेगी? फुटहिल्स पे मिलेगी। देन या दीज आर द ऑल पॉइंट्स दैट आई वांट यू टू रिमेंबर। अगर कोई शॉर्ट नोट आता है तो यू आर फुल्ली प्रिपेयर फॉर 5 मार्क्स। लेट्स गेट अहेड टू द सेकंड सॉइल ऑफ आवर्स व्हिच इज ब्लैक सॉइल। अच्छा, ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर में होती है, कॉमन सेंस। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज कॉटन प्रोडक्शन के लिए वे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ यू विल आस्क मी, मैम पाई कहां जाती है? सो इट इज फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप, स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन एज यू नो, एंड इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू। अगेन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश वाला एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड व्हाई एग्जैक्टली इट इज ब्लैक? ये कलर कहां से आता है? दिस सॉइल इज ब्लैक ओनली बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। पुराने लावा फ्लोज से ये सॉइल बनती है और वहीं से इसका कलर आता है। ओके, क्या क्या रीजन्स कवर करती है वो और भी है, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोदावरी, कृष्णा वैलीज, मालवा, मध्य प्रदेश, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल्सो एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटीरियल होता है इसका, सुटेबल, विच इज वेरी सुटेबल फॉर कॉटन, ग्रोइंग कॉटन। गर्मियों में इसमें क्रैक्स आ जाते हैं थोड़े, लेकिन फिर भी ये काफी न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश, लाइम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारे कॉटन को ग्रो करने के लिए। ओके, देन deep cracks during the hot summer because sticky due to high moisture retention when wet. Yes, ये एक थोड़ा अजीब सा इसका फीचर है कि गर्मियों में तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और जब वेट होती है तो ये क्या होती है? स्टिकी हो जाती है। ओके,
Let's move ahead and talk about another soil, which is your red and yellow soil. First point, develops on the crystalline igneous rocks in low rainfall region. बनती कैसे, सबका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इसका भी पढ़ेंगे. क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से ये डेवलप होती है, उसकी वेदरिंग से ये डेवलप होती है. सेकेंड पॉइंट, कहाँ मिलती है ये सॉइल? ये मिलती है आपको अगेन डेक्कन प्लेट्यू में, उड़ीसा वाली साइड. थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि लेटेराइट सॉइल, नॉट लेटेराइट, सॉरी, रेड एंड येलो सॉइल फेमस है वहां पे. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन एंड ऑल्सो योर वेस्टर्न घाट, राइट. वाई डू वी कॉल इट रेड एंड येलो? बिकॉज ये रेड होती है बिकॉज इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन ये जब हाइड्रेटेड हो जाती है तो ये अपना कलर चेंज कर लेती है और येलो हो जाती है. ओके, Then the next soil that we have is your lateroid soil. ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, ये lateroid soil का है. अब इस पिक्चर को देखते रहो and I will teach you the features and you can relate to this. Okay, चलो, first point, derived from the Latin word later which means brick. Lateroid soil का मतलब ही है कि brick से बनी हुई soil. वैसे ही features होंगे फिर इसके. Second point, develops under tropical and subtropical climate, जो इंडिया में भरपूर है. It is the result of intense leaching due to heavy rain. रेन की वजह से जो लीचिंग होता है सॉइल का, उससे मिलती है आपको लेटेराइट सोइल. डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, तो ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती. ह्यूमस कंटेंट रिच होता है, वाटर कंटेंट रिच होता है. कुछ कुछ स्पार्स तरीके से, मतलब दूर दूर वेजिटेशन आप इस पे कर सकते हो. सेमी एरिड एनवायरनमेंट में अगर ये सेमी एरिड एनवायरनमेंट में है ये सॉइल, दोनों एरियाज में होती है ना, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल. तो अगर सेमी एरिड रीजन में है तो इसमें थोड़ा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और पुअर होगी, तो ये वेजिटेशन के लिए और पुअर हो जाती है. ठीक है, लेटेराइट सॉइल. अब ये पाई कहाँ जाती है? एज यू कैन सी इन द मैप, ये जो पर्पल वाला है ये है आपका ये जो पीच वाला है ये लेटेराइट सॉइल है. सो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, कुछ महाराष्ट्र की तरफ, एंड ऑल्सो इफ यू कैन सी उड़ीसा में भी है थोड़ा सा ये आपका वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट साइड भी है, सॉरी, also northeast region, West Bengal, Maharashtra, Odisha. हाँ, these are some of the places where you can find this soil. Again, अगर आप इसे थोड़ा सा केयर दो, थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह योर करो, तो आप इसको कल्टीवेबल बना सकते हो. और क्या क्या ग्रो कर सकते हो? कॉफी ग्रो कर सकते हो, टी ग्रो कर सकते हो, कैश्यू ग्रो कर सकते हो, टेपियोका जो बहुत फेमस है केरला में वो ग्रो कर सकते हो, चिंचोना ग्रो कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन एक्चुअली ग्रो अ डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑन इट. अगेन थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, लेकिन कल्टीवेबल बन सकती है. The next soil which is completely hopeless in terms of irrigation is your arid soil. This ranges from red to brown depending upon its feature. Texture जो है इसका sandy होता है और इसमें saline content बहुत होता है, मतलब ये saline होती है नेचर्स में, इसमें salt बहुत होता है, राइट. इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग वाटर. कहीं कहीं तो सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि कॉमन सॉल्ट बना सकते हो वाटर इवेपोरेट करके, इमेजिन. ऑल्सो ह्यूमस कंटेंट नहीं होता है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती नहीं है, मॉइस्चर होता नहीं है, तो हम वेजिटेशन कैसे करेंगे? पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है, एज यू कैन नो, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जो थार की तरफ जैसे हम जाते हैं. ऑल्सो नॉर्दर्न गुजरात, मतलब वेस्टर्न ये और नॉर्दर्न गुजरात सेम रीजन है. ऑल्सो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, बहुत थोड़ा सा सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा में भी पाया जाता है. ठीक है, देन लुक एट द second point. Okay, this is the first point. Useful for cultivation only with suitable irrigation method in case गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. तो बहुत इरिगेशन के बाद, बहुत मेहनत के बाद कुछ ग्रो कर सकते हो इस पे, प्रोबेबली बाजरा एंड समथिंग एल्स. लेकिन बहुत ज्यादा आप सोचो कि एकदम राजस्थान, मतलब ये सॉइल पे आप पंजाब और हरियाणा की तरह कुछ ग्रो कर लोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कंकर कंटेंट बहुत होता है, छोटे छोटे स्टोन्स बहुत होते हैं इसमें. The lower horizon due to increasing calcium content. जैसे जैसे कैल्शियम कंटेंट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जैसे आप डीप जाओगे इस सॉइल में, कंकर कंटेंट भी बढ़ता जाता है. नेक्स्ट सॉइल इन द लाइन इज माय फेवरेट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, ये माउंटेन्स में पाई जाती है. It is found in the mountain areas, hilly areas of India where rainforests are available. Again, features जो हैं उस पे डिपेंड करेगा कि ये सॉइल का टेक्सचर क्या है. कोर्स होती है if it is on the higher slope, बट अगर आप वैली की बात करें तो वहां पे सिल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, अगेन क्योंकि रिवर सिल्ट लेके आती है, राइट. ऑल्सो स्नो कवर्ड एरिया जो होते हैं हिमालयाज के, वहां पे इस सॉइल में जो है एसिडिक कंटेंट होता है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, बिकॉज ये वहां पे डेन्यूडेशन को एक्सपीरियंस करती है. ठीक है,
चलो सॉइल सारी हो गई है. बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लेट मी टेल यू अ क्विज क्वेश्चन. द क्विज क्वेश्चन इज दिस: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोर कॉमन इन पाइडमोंट प्लेन सच एज दूरा, चायोस एंड तेराई? बताया था मैंने, एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योर एलुवियल soil. Then the last part is soil conservation and soil erosion also. So let's talk about first soil erosion क्या होता है, then we will move on to the soil conservation. A question had come in 2012 children. The question asks you mention any two human activities which are responsible for soil erosion. इतनी सारी, उसमें से आपको कोई दो लिखनी है, और this question came for 3 marks. तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन का वेटेज देख के हम आंसर करेंगे. और सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सॉइल इरोजन, पहली बात होता क्या है? जो टॉप कवर होता है सॉइल का, जब वो रिमूव हो जाता है तो हम उसे सॉइल इरोजन कहते हैं. कुड बी ऑफ वेरियस फैक्टर्स, राइट? Soil erosion is the removal of the soil cover and subsequent washing down of the top soil. जो लैंड का फर्टाइल रीजन, सॉइल का फर्टाइल रीजन, टॉप सॉइल, जब वो वॉश अवे हो जाता है तो हम बोलते हैं सॉइल इरोजन हुई है. सॉइल फॉर्मेशन में वैसे ही इतने सारे साल लगते हैं, और अगर इरोजन हो जाए तो फिर बस बात ही खत्म. फिर हम कल्टीवेट कैसे करेंगे? सो सॉइल, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो हैंड इन हैंड, एंड देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. यूजुअली नेचर में बैलेंस होता है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाता है और सॉइल इरोजन ज्यादा होने लगता है, फॉर्मेशन कम होने लगता है. फॉर्मेशन में वैसे ही टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि नेचुरल फैक्टर्स की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है. सम ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, ग्लेशियर, वाटर, इनकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, बट ह्यूमन फैक्टर्स से बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल overgrazing, deforestation, agriculture के faulty methods and other human construction on a large scale, development projects on a large scale, इस सब से soil erosion होता है. Okay? अब आपकी एनसीईआरटी में 3 तरीके का सॉइल इरोजन डिस्कस है. ये भी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स लुक एट द शीट इरोजन. नाउ एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग यू, नाम से आपको पता चल रहा है कि शीट की फॉर्म में पूरी सॉइल की लेयर इरोड होती है, राइट? समटाइम्स वाटर फ्लोज एज शीट्स ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप एंड द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे. ये है आपका स्लोप और यहां से वाटर आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो टॉप लेयर है वो वॉश अवे हो जाएगी, एंड दैट वुड बी नोन एज शीट इरोजन, बिकॉज वो एक शीट की फॉर्म में होगी कि ऊपर वाली लेयर ही गई है सिर्फ, राइट? सेकंड इज योर गलीज. गलीज एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, एक पतली पतली गलियां बन जाती हैं, पतले पतले नैरो स्ट्रोक्स बन जाते हैं सॉइल में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स. ये काफी डीप होते हैं, एंड दिस मेक्स द लैंड अनफिट फॉर द कल्टिवेशन. यहाँ क्या उगा पाओगे आप? जब आप इसे चंबल वैली में जाते हो तो इसी गलीज को आप रेवाइंस भी बोलते हो. ये बैड लैंड बन जाता है आफ्टर अ वाइल. द थर्ड एंड द वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ इरोजन इज विंड इरोजन. कुछ नहीं होता, विंड ब्लो करती है और जो सॉइल होती है उसकी टॉप लेयर आपकी इरोड हो जाती है. सो विंड ब्लोज लूज ऑफ फ्रॉम द फ्लैट और स्लोपिंग लैंड. कैसे भी कर सकती है, फ्लैट लैंड से भी विंड उड़ा के ले जा सकती है टॉप सॉइल, और स्लोपिंग लैंड से भी उड़ा के ले जा सकती है. सो दीज वर योर 3 काइंड्स ऑफ द सॉइल इरोजन्स, एंड नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू वेज टू कंजर्व सॉइल. ओके, सबका पिक्चर अवेलेबल है यहाँ पे. पहला देखते हैं कॉन्टूर प्लगिंग. ये जो पिक्चर है यहाँ पे, ये कॉन्टूर प्लगिंग का है. एज यू कैन सी कॉन्टूर लाइंस बनाई हुई हैं. तो प्लगिंग करते हो आप फार्मिंग में, जो प्लोइंग करते हो आप काउंटर लाइंस के अलोंग, ताकि जो फ्लो है वाटर का वो कम हो सके स्लोप पे, राइट? वाटर वुड हैव टू फ्लो, वाटर की स्पीड कम हो जाएगी और उतने फोर्स से नहीं आएगा कि सॉइल इरोड कर पाए, इसलिए हम काउंटर प्लोइंग करते हैं, ठीक है? सेकेंड इज योर कौन सा डिस्कस करें? Okay, let's discuss terrace cultivation. Okay, terrace cultivation is this one. Now, as you can see, आप stairs बनाते हो cultivation की, right? Where do you do it? Actually, you need slopes for it. तो mountain regions में ज़्यादा अच्छे से होता है. Terrace farming steps can be cut out on the slopes, making terraces to restrict erosion. Again, अगर पूरी slope पे ऐसे farming करोगे तो wind का भी खतरा ज़्यादा है और water का भी खतरा ज़्यादा है. Terraces बना दोगे, stairs बना दोगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, राइट? आई टोल्ड यू हिली एरियाज पे ज्यादा होता है. स्ट्रिप क्रॉपिंग, वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ मेथड, एज यू कैन सी हियर. स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो आप क्या करते हो, आप अपना जो भी आपको उगाना है, जो भी क्रॉप ग्रो करना है उसे ग्रो करते हो. बीच बीच में बस उस क्रॉप के आप
स्ट्रिप्स बना देते हो ग्रास की, तो स्ट्रिप ऑफ ग्रास टू बी ग्रोन बिटवीन द क्रॉप, दिस हेल्प्स टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। अगर उसे खाली छोड़ दोगे तो विंड का फोर्स उस पर लगेगा एंड इट माइट इवन अफेक्ट योर क्रॉप, बट अगर आप वहां पे कुछ उगा दोगे तो सॉइल बंध जाएगी और विंड का फोर्स वहां पे नहीं लग पाएगा। सेम लॉजिक लगा के हम एक और कंजर्वेशन मेथड पढ़ते हैं, वो है शेल्टर बेल्ट। मैं पहले भी बता चुकी हूं इस सेशन में, बट ये पिक्चर भी देख लो आप कि आपने बीच में क्रॉप ग्रो किया और साइड में शेल्टर की तरह बिग बिग प्लांट्स को ग्रो कर दिया, बिग ट्रीज को ग्रो कर दिया। तो ऑब्वियसली अब विंड जो है पहली बात तो रीच ही नहीं कर पाएगी क्रॉप वाले एरिया पे, और अगर बाई चांस कर भी गई तो डेफिनेटली इरोजन जो है मिनिमाइज हो जाएगा। सो प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर इज नोन एज शेल्टर बेल्ट कंजर्वेशन मेथड ऑफ सॉइल। दिस हेल्प्स टू स्टेबलाइजिंग द sand dunes also. Cool. Now this chapter is successfully over, children. Before I make an announcement, I want to give you a homework question. The homework question is, the running water cuts through the clay soil and make deep channel. ये वाला कौन सा तरीका है soil erosion का? So you please let me know in the comment section what do you think about this question, what do you think is the right answer. I will see you next time, and the important announcement is that a video is coming on how to attempt social science exam, okay? Why? Because it is very important, it is very different from the other exams. I want you to take care of the important points, especially for the social science. And don't forget to like the video and subscribe to the channel for more than amazing fun videos. Cool. I'll see you next time. Till then, keep smiling and studying.